प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मैंने जने बाबा अच्छा आप जानी जार ना हो धीरेन्द्र शास्त्री आउ यार आउ गोटे ना अच्छे बागेश्वर बाबा बोली कह जाए। बागेश्वर बाबा आम जो देखा जदि तार वीडियो गुड़ी को देखा पूर्वर बहुत गुड़े वीडियो से ख्रीष्टियानिटी विषय बहुत किसी विषय से कही ख्रीष्टियान मान विरुद्ध रे आ प्रभु जीशुख्रीष्ण विरुद्ध आउ जीशुଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏପରି ଅନେକ କଥା ସେ କହିଛି। ତବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ କହୁଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେ ବାବା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫାଦର ଚାଦର ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାବା ବାହାରିଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ, ସଭାରେ ବୁଲି ବୁଲି କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତୁମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ ଏମିତି କାମ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ କର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ତୁମେ ବୁଲି ବୁଲି ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତୁମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜଣେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କି କେବଳ ମାତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବା ବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ବହୁତ ଭୁଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ। ଏ ବାବା ଜଣକ ଆମ କାମକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏ ବାବା ଜଣକ ଆମ କାମକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ଯିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପ୍ରଲୋଭନରେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ। ଏଇଟା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ତୁମେ କର। ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ କ'ଣ ଆସିବ? ସାମ୍ନାକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଆସିବ ଯେ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ନିଜ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି କରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ସେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ, ବୁଲି ବୁଲି କହିବ ଯେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ବି ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅର୍ଥର ଲୋଭ ନେଇକି ନୁହେଁ। ସେମିତି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହୁଏତ ଏଇ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଏଇ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ।
और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। समस्त को जय मासिकी। हिंदुओं को चादर या फादर के पास अभी इसलिए जरूरी कि पहले अपने बाप को तो बाप कह लो, बाद में चाचा ताऊ बनाओ। इसीलिए हमने कहा है कि आप। और दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, अजय सिंह यादव जुड़े हैं और फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। जो संत ने कहा यानी बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा, उस पर इन दोनों राजनीतिक दलों की राय क्या है, पहले वो जान लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे ही चाहूंगा। देखिए, साधु संत हो या समगुरु हो, उन पर कोई कांग्रेस पार्टी कभी टीका टिप्पणी नहीं करती। सही बात, देश में धार्मिक मामलों को लेकर ये भारत जो है सनातन संस्कृति का देश है, सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है हमारी। और भारत का बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान सबको पूजा पद्धति का, अपने धर्म की पालना का, अपने मनपसंद धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, वो हमेशा है और आदिकाल तक भारत का संविधान रहेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, ये तो अब वो धार्मिक धर्मगुरु लोग हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस आधार पर कह रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। नहीं, फिर भी ये उन्होंने कहा कि चादर फादर वाली बात कही है, तो इस पे तो कोई रिएक्शन होना चाहिए ना। राजनीतिक दल क्या कहता है अगर इस तरह का बयान सार्वजनिक जगह पर दिया जाता है? नहीं तो मैंने कहा ना, वो जो भी है, सबको अपनी भारत के नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म की पालना करे, और वो जिस भी धर्म की पालना करना चाहता है वो कर सकता है, और अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यह आर्टिकल 25 के तहत संवैधानिक अधिकार है लोगों का, वो मिलता रहेगा। अजय सिंह यादव जी, फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे भाई ये संवैधानिक अधिकार है, वो संत है, गुरु है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कानून का भी हवाला दे रहे हैं। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ सनातन धर्म की एकता के लिए पदयात्रा पे निकले हैं, और उनकी यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है, जो कि हम आप सब लोग लगातार देख रहे हैं। सनातन धर्म के संदर्भ में हमारे धर्मगुरु जो भी कहते हैं वो सभी के लिए मान्य होना चाहिए, और उनकी शिक्षा दीक्षा का सभी को संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बात कही है, बिल्कुल सही बात है। पहले अपने धर्म का सही तरीके से पालन होना चाहिए, उसके बाद ही इधर उधर देखना चाहिए। अपने धार्मिक ग्रंथों का पालन, रीति रिवाजों का पालन, तीज त्योहारों का पालन होना चाहिए, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी तुष्टीकरण छोड़ना चाहिए। अच्छा। उन्हें जिस तरह से अब तो कमेंट करेंगे, अब तो पॉलिटिकल बयान आ गया ना, धर्म पे हमला करने वालों की आलोचना करने से कांग्रेस पीछे सबको मान्य होना चाहिए। कौन से संविधान में लिखा है? अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं। देखिए, ये इनका उद्देश्य है पॉलिटिक्स में संत महात्माओं की बातों को आम जनता में धार्मिक भावनाएं भड़काना और वोट हासिल करना। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, हमने तो किसी तुष्टीकरण की बात ही नहीं की है। लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कोई रिट लेके गया था कि साहब धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। अच्छा, एक अगर राजनीतिक दल कहता है कि जो बाबा कह रहे हैं वो मान्य है, मानना चाहिए, वो एक बड़े उद्देश्य के साथ निकले हैं, उसके बाद भी आप संविधान की बात कर रहे हैं? देखिए, संविधान के खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता ना। कहते भारतीय जनता पार्टी की हम संविधान बदल रहे हैं, वो तो कहते ही घूम रहे थे, तो वो उनका उद्देश्य हो सकता है। हमारा तो साफ कहना है कि भारत का संविधान है और संवैधानिक अधिकार है लोगों का धर्म की पालना करना, अपनी पूजा पद्धति का पालन करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। बाबा भी उसी धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी प्रियंका जी ने जिस संविधान को लेकर आज शपथ ली पार्लियामेंट में, वो संविधान कह रहे हैं कि हमारे साथ है। अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं हम तो उसी के साथ चलेंगे। देखिए, संविधान को अगर किसी ने सही अर्थों में पालन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने तो 100 से ज्यादा संविधान संशोधन, 90 से ज्यादा सरकारें गिराने का काम किया, संविधान का मखौल उड़ाया। हमारा तो स्पष्ट तौर पे कहना है कि आप पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाते हैं, आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ चाहे लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसे आरोपियों के साथ खड़ी होती है कांग्रेस पार्टी। तो क्यों ना कहें कि आप तुष्टीकरण करते हैं। आप ऐसे गलत लोगों के साथ खड़े होंगे तो दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश में तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति चले, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले। ये लाभ लेने के लिए सब काम करते हैं क्या फिरोज जी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की लोग अब बातें नहीं सुनना चाहते, तो अब ये बाबाओं की जो बातें हैं उन्हीं बातों में तरीके लगाते, तो वही हम कह रहे हैं ना कि बाबाओं की बातें सुन के ये बातें कर रहे हैं और इनकी बातों का कोई अहमियत नहीं है। वो आपको आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकसभा को हुए बहुत दिन नहीं हुआ, विधानसभा को हुए बहुत दिन नहीं हुआ, ये आईना दिखा रहे हैं आपको। अजय जी देखिए,
जब आप बोल रहे थे बीच में तो। हाँ, तो ये इनका कहने का अर्थ है कि देश में जो है चुनाव हुए हैं तो वही इसलिए चुनाव जीत गए हैं हम, इसलिए ये भी तो बताएं कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नीचे चली गई। 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पे आ गए, वो उसको भी बहुत दिन नहीं हुए। 99 से तो ज्यादा होते हैं, 240 की आपकी तो गिनती में 99 यही हम कह रहे हैं ना, तो जनता भाई का किसको समर्थन अब आप ज्यादा जोड़ तोड़ करके सरकार बना रहे हैं, चल रही है, तो एक अलग बात है।